Welcome back to the Biology by Sravanti. Today we are going to learn about the kingdom Animalia. So this kingdom Animalia, some of the characteristics are they are heterotrophic in nature. That means they depend upon the another organism and they have the capacity to move. That is nothing but locomote कर सकता है. And they show the multicellular and eukaryotic in nature. And their growth is determinate. That means they grow or follow indefinite पैटर्न. कितना हाइट ग्रो होना उतना हाइट ग्रो हो सकता है. सो दीज आर दी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया. सो ऑल द एनिमल्स जो भी है आर क्लासिफाइड और बेस्ड अपॉन सम ऑफ द कैरेक्टर्स को लेके. सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स. सो व्हाट आर द क्राइटेरिया लेके एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस किया है. सो दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इन दिस टॉपिक और इन दिस lesson. Today, before going to the topic, if you are not subscribed to my channel, please like, share and subscribe to my channel. And वहाँ पे साइड पे बेल आइकॉन रहता है, please click on to the bell icon such that any further notification will come for you. ठीक है. So coming for the kingdom Animalia characteristics. So some of the characters like grade of organization. So the grade of organization बोले तो cellular level. If an organism, as I said, the organisms, all the animals are multicellular and eukaryotic. So that means the cell will divide. Cell is a fundamental functional unit of the body. So एक cell से क्या होता है डिवाइड होके ग्रुप ऑफ सेल से एक टिश्यू बनता है. सो ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक्स एन organ and group of organ make an organ system and group of organ make an a complete body. So this is a mechanism of multicellular organism. But some of the animals can show the सेल डिवाइड होके उतना ही रहता है एंड सम सेल शो द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स बेस्ड अपॉन दिस कैरेक्टर्स को लेके द एनिमल्स आर फर्दर डिवाइडेड और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्लासीफाई किया है. So next coming for the body symmetry. This body symmetry is nothing but body कैसे whether it is an a bilateral symmetry or radial symmetry or asymmetric. That means symmetry बोले तो if you cut an organism, ठीक है, if you cut an animal in a one axis, so both the equal angle both the equal sides should come same. That is nothing but bilateral symmetry. When you cut the organism into two equal halves, यहाँ पे देखे तो आपको two equal halves नहीं आता है. So such type of organisms are placed under asymmetric animals. So by radial symmetry बोले तो if you cut in any axis, they show the equal parts, they give rise to equal parts. So that is called as a radial symmetry. Bilateral symmetry बोले तो when you cut in an one axis it gives the two equal parts. So that is nothing but bilateral symmetry. ये symmetry को भी base करके animals are further divided or classified in different organism. Next coming for the body cavity. Body cavity बोले तो maximum all organisms का अंदर सीलोम रहता है. सीलोम is nothing but it is a fluid. Body cavity बिटवीन द इंटेस्टिनल कैनाल एंड बॉडी वॉल्स का बीच में एक सीलोम रहता है. दैट इज नथिंग बट बॉडी सीलोम. इफ सम एनिमल्स हैव सीलोम इट इज कॉल्ड सीलोमेट एनिमल्स. सम एनिमल्स डज नॉट हैव सीलोम सो एसीलोमेट एंड सम शो द सूडोसीलोमेट. दैट मीन्स दे अपीयर एज सूडोसीलोमेट. सूडोसीलोमेट बोले तो फ्लूइड फिल्ड बॉडी cavity but not lined with peritoneum layer. सीलोमेट में कैसे इसका अंदर भी बॉडी फ्लूइड बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहता है बट इसका अंदर इट इज़ लाइंड विथ पेरिटोनियम लेयर. सो सूडोसीलोमेट में पेरिटोनियम लेयर एब्सेंट है, सीलोमेट्स में पेरिटोनियम लेयर प्रेजेंट है. सो इसके हिसाब से दे आर प्लेस्ड एज सूडोसीलोमेट्स एंड सीलोम प्रेजेंट है बट दे एक्ट एज अ सीलोमेट. सो इसलिए नाम आया है सूडोसीलोमेट. एंड बेस्ड अपॉन दिस एसीलोमेट सूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट के हिसाब से भी एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरी में प्लेस किया है. नेक्स्ट कमिंग फॉर द जर्म लेयर. सो जर्म लेयर इज नथिंग बट here you can see diploblastic and triploblastic. If the germ layers, 3 layers are present like ectoderm, endoderm and mesoderm. If 3 layers are present it is called as triploblastic. If only 2 layers are present it is called as diploblastic. So you can see here this outer layer is ectoderm,
inner layer is a mesoderm and innermost layer is a endoderm. This is triploblastic. Here you can see in non-living layer like mesoderm इधर नहीं है, ठीक है. So only ectoderm and endoderm is present. So it is called as diploblastic ऑर्गेनिज्म. सो बेस्ड अपॉन दिस टू कैरेक्टर्स को लेके भी एनिमल को क्लासीफाई किया है. नेक्स्ट कमिंग फॉर द बॉडी सेगमेंटेशन. बॉडी सेगमेंटेशन बोले तो दे आर टू ऑर्गेनिज्म लाइक बॉडी का ऊपर सेगमेंट्स रहता है, बॉडी का ऊपर सेगमेंट्स नहीं रहता है. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अर्थवर्म का ऊपर सेगमेंट्स रहता है. कमिंग फॉर द रेड वर्म, ठीक है. सो रेड वर्म विल बी प्लेन. सो बेस्ड अपॉन सम दैट कैरेक्टर्स को लेके भी बॉडी का ऊपर लाइंस और सेगमेंट्स रहते हैं तो दैट ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड अंडर सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म. बॉडी का ऊपर सेगमेंट्स नहीं है तो दैट ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड अंडर अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म. सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टर्स को लेके एनिमल्स को क्लासीफाई किया है, ठीक है. सो नेक्स्ट गोइंग विद द एनिमल बॉडी प्लान. सो बॉडी का प्लान, उसका बॉडी कैसा है, ठीक है, बेस्ड अपॉन दैट कैरेक्टर को भी लेके एनिमल्स को क्लासीफाई किया है. सो फर्स्ट वन यू कैन सी सेल सेग्रीगेट प्लान, ठीक है. सेल सेग्रीगेट प्लान का अंदर सेल डू नॉट फॉर्म टिश्यू और ऑर्गन, ओनली बॉडी रहता है, ठीक है. सो उसका अंदर टिश्यू नहीं रहता है, नहीं तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स नहीं बनता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं रहता है, ठीक है. सो सच टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज सेल एग्रीगेट प्लान. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन पोरीफेरा स्पॉन्जेस को, ठीक है. सो मिनिमम डिफ्रेंसिएशन, डिफरेंस ऑफ लेबर अमॉन्ग द सेल, मिनिमम डिफरेंस रहता है बट कंप्लीट टिश्यू नहीं बन सकता है, नहीं तो ऑर्गन नहीं बन सकता है. सो सच ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड अंडर द सेल एग्रीगेट प्लान. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, सेकेंड वन इज अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. सो इसका अंदर कैसे एक सिंगल ओपनिंग ही रहता है. सो डाइजेशन के लिए डाइजेशन इज कैरीड आउट इन दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर द इंजेक्शन एंड यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रा. सो दिस इज अ माउथ. सो इट टेक इनसाइड द फूड मटेरियल एंड गिव आउट द सेम पैसेज. एक ही पैसेज है इंजेक्शन के लिए, बोल टेकिंग इन के लिए एंड थ्रोइंग आउट ऑफ द वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी. एक ही है यहाँ पे ओपनिंग. सो दिस टाइप इज कॉल्ड एज अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. सो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल Cnidaria, example Hydra. So this is a blind sac plant with a single opening. Next coming with the tube with a tube body plant, ठीक है, tube within the tube body plant. So here you can see digestion is present in the tube like body cavity and the mouth is present as well as the anus is also present. So two openings are there for the digestive tract. It takes in inside the body and throw out with the another passage. So this type is called as tube within tube body plan. So this type of mechanism you can see in the annelidans, ठीक है. So annelidans में हम देख सकता है. So example you can give here as a fish. Thank you for this session. If you like, share, comment. Don't forget to comment. Any doubt you can comment in the comment section. And if you like, please like, share and subscribe to my channel.